Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम. All right, so हम कर रहे हैं solve हमारे पास. This is practice paper 2. तो हम लोग इस paper को solve करेंगे, right? And then जो है वो उसको complete करने के बाद I hope इसमें जो भी queries होंगी वो आपकी resolve हो जाएंगी, ठीक है? Okay, so question number 1. So question number 1 is, in this question, you will need to give you will be given a statement followed by 4 possible answers. Select which of the 4 answers you think is correct and tick the box next to your answer. What is the symbol for NAND? So हमें पता है NAND is a combination of and NOT gate. तो हमारे पास वो basically एक AND के आगे एक हम circle बना देते हैं, right? So that this is our NAND gate. Then लिखा हुआ the description of the analysis stage of the program development lifecycle. So analysis stage की specifically बात हो रही है, तो उसके में से कौन सा हमारे साथ match करता है इस पे, हम उसको read करते हैं. The first one is investigating to provide the specification of what a program is required to do. Second is testing of the program to make sure that it works under all conditions. Third is writing of all the program or suite of programs. And last is using the program specification to show how the program should be developed. So analysis stage के अंदर हम basically क्या करते हैं? We go to the client or we try to figure out what we have to make in that specific program. So basically सारा requirement gathering का काम, investigation का काम सारा इसी से related होगा, and that is closely related to the first statement that was made, investigating to provide the specification of what a program is required to do. Then लिखा हुआ है which statement is used for selection. तो selection के लिए हमारे पास if और case दो अलग अलग options हैं. इनमें से मुझे नजर आ रहा है case ही जो है वो उसके साथ match करता है. And then the description of a database table. So आपके पास description of the database table आपके पास लिखा हुआ collection of fields about the same item. ठीक है? Collection of related records, a field that uniquely identifies a record, a single piece of data. So इनमें से हमारे पास जो closely basically database क्या होता है? It's a collection of related records. यानी related जो rows होंगे हमारे पास जो records हैं वो सारे एक साथ एक table के अंदर stored होंगे. So हमारे पास this would be this. Okay, then the question is, now this is a descriptive question, ठीक है? इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है describe what is meant by a standard method of solution. So इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे हम basically a standard method of solution is one that is needed on a regular basis and can be used as a part of many different algorithms. ठीक है? So a standard method of solution is one that is needed on a regular basis and can be used as part of many different solutions. Right? So this is basically terminology that you should have gone over. तो आपका इस तरह के भी questions आपके पास आ सकते हैं जहां पे आपके पास ज्यादा स्पेसिफिक चीजों को डिफाइन करना है. जैसे हमारे पास एनालिसिस के अलावा डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे हमारे पास जो डिफरेंट जो स्टेजेस हैं ऑफ लाइफ साइकिल वो भी आपका डिफाइन करना आ सकते हैं. ठीक है? So this is part of your syllabus and this type of terminologies you should know. ठीक है? Next question पे आते हैं. Next हमारा लिखा हुआ है counting is a standard method of solution. Give 3 other examples of standard methods of solution.
सो हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास एक एग्जांपल जो लिखी हुई है दैट्स काउंटिंग, राइट? सो हमारे पास काउंटिंग के अलावा हमारे पास और कौन कौन से, टोटलिंग है, ठीक है, इसके अलावा हमने जो है वो देखा हुआ है लीनियर सर्च, बबल सॉर्ट। तो ये सारी चीजें हमारे पास इनमें से, और इसके अलावा मैं और भी बताता हूँ, कैलकुलेटिंग एवरेज, कैलकुलेटिंग मैक्सिमम, कैलकुलेटिंग मिनिमम। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस अवेलेबल थे जो आपने एज ए कोर्स के अंदर ही पढ़ा होगा। उनमें से आपको सिर्फ यहाँ पे 3 लिखते हैं। सो सबसे आसान जो है हमारे पास 3 जो आप सबको याद होने चाहिए वो है टोटलिंग, एंड लीनियर सर्च, एंड बबल सॉर्ट। So the next question is, describe using an example the use of counting as a standard method of solution. So counting की हमें एग्जाम्पल देनी है, राइट? तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स पहले भी आपने देखी हुई हैं, उनमें से आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन एग्जाम्पल, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इसमें मेक श्योर करना है बिकॉज यहाँ पे हमने काउंट करना है। सो इसका मतलब देयर नीड्स टू समथिंग नीड्स टू हैपन ऑन द बेसिस दैट आप वहां पे कुछ चीज काउंट कर रहे होगे, and it could be any example. So an example that I want to write is that any person whose age is less than 12 is a child, right? So I want to count how many students are children in the inputs of, let's say, 100 people, right? So मैं इसको इसकी example, so then it could be any example. तो एक हम variable use कर लेते हैं, let's use this variable, let's call this child count, and initially कितना होगा, 0 होगा। फिर मैं लिख रहा हूँ for counter is 1 to 100, and then हम input करेंगे age, and if age is less than 13, and अब हमारे पास अक्सर, मैंने आपको ये पहले भी बताया था that sometimes you could have you might not have a lot of space, and अगर आपका सिंगल स्टेटमेंट आपने लिखनी है तो आपने 3-4 लाइनें ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे then लिख सकते हो, जस्ट सो दैट आप स्पेस बचा सको। इसमें मुझे नजर भी आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है कि स्पेस बहुत कम है। सो देन चाइल्ड काउंट इज चाइल्ड काउंट प्लस 1। सो दिस स्टेटमेंट, ये जो यहाँ पे लिखिए, दैट्स द बेसिक स्टेटमेंट फॉर काउंटिंग, ठीक है? इसके अलावा बाकी सब चीजें उसको सपोर्ट कर रही हैं, बट दिस इज द एक्चुअल स्टेटमेंट जो शो कर रहा है कि हम कुछ काउंट कर रहे हैं। एंड देन एंड इफ, एंड देन नेक्स्ट काउंटर, ठीक है? डिक्लेरेशंस भी कर लेते साथ साथ में, तो डिक्लेयर चाइल्ड काउंट काउंटर एंड एज, इन सब का डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। अब नाउ यू डोंट नीड टू वरी अबाउट के इस क्वेश्चन के अंदर ये जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, बिकॉज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी फॉर डिफरेंट सिनेरियो और डिफरेंट क्वेश्चंस कुड बी डिफरेंट, राइट? सो जैसे इसके अंदर हमारे पास हो सकता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है, there should be a condition, and then there should be actual counting wala statement. I don't want you to worry about के marks किस चीज से मिलेंगे। Your basically focus should always be कि मैं इसको correct कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है? तो मैं इसमें जो है वो जब भी आपको नजर आएगा तो उसमें आप लोगों को नजर आएगा कि डिक्लेरेशंस वगैरह सब ऐड की हुई है, इवन तो प्रॉब्ली इसके अंदर डिक्लेरेशंस के मार्क्स नहीं होंगे, बट वी डोंट वांट टू रिस्क एनी मार्क्स बिकॉज यू डू नॉट नो कि उस पॉइंट इन टाइम के अंदर मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है? सो लेट्स नॉट bother ourselves with that, ठीक है? Then the question is, the table below shows ticked boxes relating to validation and verification checks. The following 5 descriptions have been missed out of the table. तो आपका validation, verification और name of check लिखा हुआ है, तो हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है, उसमें डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है और नेम ऑफ चेक बताना है। मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एंटायर थिंग मैं इनको नंबर दे रहा हूँ,
1 2 3 4 5 और मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नंबर लिख दूंगा, उसका आगे नेम ऑफ चेक लिख दूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास है डेटा मस्ट बी 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, सो दैट इज ए लेंथ चेक, एंड लेंथ चेक हमारे पास होता है वैलिडेशन। तो ये हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैलिडेशन में, और ये हमारे पास हो गया है लेंथ। मैं इसको शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ, मैं इसको ऑल कैप्स में लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, देन लिखा है डेटा मस्ट बी एंटर्ड ट्वाइस एंड मैच। सो ये आपके पास है डबल एंट्री, एंड डबल एंट्री इज वेरिफिकेशन। तो ये हो गया 2, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे लिखा है, बट एग्जाम में अगर आपका जाएगा तो आपको पूरा स्टेटमेंट यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है वो पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ। सो ये हो गया डबल एंट्री। देन लिखा है डेटा इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन टू बी कंफर्म्ड। तो आपके पास कंफर्मेशन आएगी, आप जो है वो उसको कंपेयर करोगे विद द एक्चुअल वैल्यू, तो ये आपके पास होगा विजुअल चेक, एंड दिस इज ए वेरिफिकेशन चेक 3, एंड देन विजुअल चेक। और बाकी 2 वैलिडेशन ही होने चाहिए, बिकॉज हमारे पास 2 वैलिडेशन ही बाकी है, बट विच ऑफ दीज it is, let's figure it out, right? Data must have a value between 8 and 12, so there is a range, right? Lower range है, upper range है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, range check होगा, which is also validation। और लास्ट हमारे पास डेटा मस्ट ओनली कंटेन नंबर्स, तो नंबर सिर्फ होने चाहिए इसके अंदर। तो आप इसका डेटा टाइप चेक कर रहे हो कि आपके पास वो रियल वैल्यू या फिर आपके पास न्यूमेरिक हो या फिर होल नंबर्स हैं, आपको कोई भी टाइप का नंबर वैल्यू चाहिए तो ये आपके पास हो जाएगा टाइप चेक। ऑलराइट, होप यहां तक सबको क्लियर होगा। Okay, so we will then move to question number 4. Explain why test data is required. So test data, आपके पास, आपको पता है different type के test data होते हैं, normal, abnormal, extreme, boundary, and what they do basically is that आपको help करते हैं to identify कि आपके पास जो solution है उसके अंदर कोई error नहीं है। ठीक है, so that's what we'll write. For 2 marks we'll write test data is needed to ensure that the program completes all parts of the solution without error, and that the solution is robust, to make sure कि उसके अंदर वो सही तरह भी चल रहा हो, उसके अंदर कोई error भी नहीं हो। Then हमारे पास question state 3 types of test data. I mentioned the different types that we have. The 3 types that you should always remember is normal. So यहाँ पे देखो term लिखा हुआ है state, तो मुझे सिर्फ नाम लिखने हैं। अगर यहाँ पे लिखा हो describe, then I would also mention what it is. So normal, abnormal, and boundary. Then हमारे पास है part B. A program accepts values that are whole numbers between 30 and 40 inclusive. Give examples of test data that are required. Explain, including the expected outcome, why each piece of test data is needed. So आप देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है accepts values that are whole numbers, ठीक है, then लिखा हुआ है 30 and 40 inclusive, इसके बीच में numbers होने चाहिए। Then what you have to do is give examples of test data, explain, including the expected outcome, why each piece of test data is needed. So हमें different test data के लिए create करना पड़ेगा। So what we would do is basically create abnormal, normal and boundary test data, ठीक है। So हमारे पास सबसे पहले हम लिखते हैं अपने पास normal test data,
So normal test data हमारे पास क्या होगा? That would be anywhere between 30 and 40. Example ऐसे ले लेते हैं 35. ठीक है, that's the center of this thing. And इससे होगा क्या? Basically to ensure that the program accepts this value and provides an acceptable solution. ठीक है, I know काफी lengthy लिख दिया, but this is what is required that we also explain इससे होगा क्या. ठीक है, then हमारे पास था abnormal data. And abnormal data के अंदर example देते हैं हम. So any value that would be rejected, right? So हमारे पास abnormal data के अंदर हम डाल देंगे for example 30 से 40 के बीच में हमारे numbers होने चाहिए. तो maybe 20, maybe 60, anywhere which is not in the range, right? So मैं यहाँ पे example ले देता हूँ, let's say 60. इससे क्या होगा? To ensure that these values are rejected. And last हमारे पास है boundary test data. और boundary test data के अंदर हम कोई भी example दे सकते हैं. जैसे हम इसके अंदर दे सकते हैं कि 29 देंगे तो that is also a boundary test data which should be rejected, and 30 is an acceptable boundary test data. इसी तरह से 40 is acceptable and 41 would be unacceptable, abnormal हो जाएगा वो. तो हम यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल दे देते हैं. तो एग्जाम्पल 29 and 30 to ensure 29 is rejected as it is out of range, and 30 is accepted as it is in the required range. Okay, so next question हमारे पास दिया हुआ है, question number 5, and this algorithm is written in pseudocode. तो ये algorithm हमारे पास लिखा हुआ है, पूरा pseudocode का लिखा हुआ है. इसके अंदर state the purpose of the algorithm. So algorithm का purpose देखने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा algorithm क्या कर रहा है, उसको हम go through करते हैं. So सबसे पहले लिखा है repeat please enter your password. आपने एक input किया होगा password, then it checks कि password का length is less than 10, तो इसने reject कर दिया. ठीक है, so less than 10 would be rejected. Anything equals and above than 10 would be acceptable. उसके लिए हमने क्या किया, symbol is false. अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए यू केस हम यूज करते, तो पासवर्ड को हमने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया. काउंटर 1 लेंथ ऑफ पासवर्ड, तो व्हाटएवर द लेंथ इज इतनी बार ये लूप चलेगा. सबस्ट्रिंग से क्या हो रहा है, सबस्ट्रिंग में हमारे पास जो पासवर्ड है, काउंटर इज बेसिकली द पोजीशन एंड 1. तो हमारे पास हमने ये पहले भी देखा है दैट सबस्ट्रिंग के फंक्शन में अगर मैं 1 लिखता हूं तो इट इज एबल टू एक्सट्रैक्ट 1 कैरेक्टर, और अगर मैं अपने पास फॉर लूप के साथ उस पोजीशन को चेंज करते रहूंगा तो हमारे पास उस पोजीशन से एक एक कैरेक्टर हम रिसीव कर रहे हैं. सो इफ दैट इज ग्रेटर देन 90 और इट इज लेस देन 65, तो हमने इधर लिख दिया है सिंबल इज ट्रू. सो व्हाई डू यू थिंक ऐसा हो रहा है? बिकॉज इफ यू रिमेंबर हमारे पास जो है वो 65 जो है कैपिटल ए होता है. So anything less than capital A and anything above capital Z would be
ए सिंबल और उसने यहाँ पे ट्रू कर दिया, ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। देन हमारे पास लिखा है इफ सिंबल। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिंबल की वैल्यू ट्रू या फॉल्स है। सो सिंबल की इनिशियल वैल्यू क्या थी, फॉल्स। सो अगर फॉल्स होगा तो यहाँ आ जाएगा रिजेक्ट नो सिंबल, और अगर ये ट्रू होगा तो आपका आ जाएगा एक्सेप्ट, राइट। एंड व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कीप ऑन डूइंग दिस अंटिल हमें सिंबल मिल जाता है, यानी सिंबल एक कोई आपके पास था वो ट्रू हो जाएगी वैल्यू। अदरवाइज पासवर्ड की वैल्यू जो है आपका पासवर्ड का जो लेंथ है should be greater than or equal to 10। तो इसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं। I know it's a bit complicated, but मैंने काफी सारी चीजें आपको एक step by step explain किया। That's what we have to write. So we'll write it is used to check. The purpose is to check if a password is, हमारे पास कितने characters required थे, at least 10 characters, right? Is at least 10 characters। एंड व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू इज, अगर इसमें एक भी कैरेक्टर अगर आपके पास सिंबल होता है तो आपके पास एक्सेप्टेबल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंड कंटेन्स एट लीस्ट वन सिंबल, ठीक है। तो इसमें दो चीजें हुई हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक तो हमने देखा था कि लेंथ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10, एंड दूसरा हमारे पास जो है वो सिंबल आपके पास होना चाहिए। अब हाउ डिड वी आइडेंटिफाई सिंबल, तो अगर आपको याद होगा एस की कैरेक्टर्स में हमारे पास जो है वो होते हैं, क्योंकि ये जब कैरेक्टर को कंपेयर कर रहा है तो यहाँ पे जो है वो ऑल दो इज नॉट डायरेक्टली कंपेयरिंग, यहाँ पे हो सकता था कैपिटल ए और कैपिटल जी हो सकता था, बट यहाँ पे आपके पास एक और कॉन्सेप्ट भी जो है आपके पास इवैल्यूएट हो रहा है, दैट इट दिस वैल्यू इज बीइंग कंपेयर्ड टू एस की। तो कैपिटल ए जो है आपके पास इफ यू रिमेंबर इज 65, सो इट्स ट्राइंग टू कंपेयर कि अगर वो कैपिटल ए नहीं है, इज स्मॉलर देन कैपिटल ए, एंड अगर आप इसमें 26 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 90 which is z, and it should be less than, sorry, it should be, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि a से छोटा नहीं हो और z से बड़ा नहीं हो। If any value is not between a and z, इसका मतलब that would be a character जो आपके पास सिंबल हो सकता है, ठीक है। बिकॉज हमने जब अपर केस में कन्वर्ट कर दिया इसलिए मुझे लोअर केस ए और जी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ए और कैपिटल जी के कंपेरेटिवली देखा, दैट इफ द वैल्यू इज बिटवीन ए एंड जी दैट इज फाइन, दैट एंड इफ बट इफ इट्स लेस देन ए और ग्रेटर देन जी इट मींस दैट इज सम अदर सिंबल, और सिंबल की जो आपके पास फ्लैग है उसको ट्रू कर दिया। So then the question is identify the line numbers for these types of statements. Assignment statement, तो कहीं असाइनमेंट हो रहा होगा, तो मुझे नजर आ रहा है असाइनमेंट हमारे पास बहुत सारी जगह पे हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है असाइनमेंट, यहाँ पे हो रहा है असाइनमेंट, यहाँ पे भी हो रहा है असाइनमेंट, तो हमारे पास बहुत सारी जगह पे असाइनमेंट्स हो रहे हैं। कोई भी एक लाइन लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइन नंबर 8, तो फर्स्ट अकरिंग वैल्यू में लिखता हूँ लाइन नंबर 8। सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब इफ स्टेटमेंट्स आपके पास कहीं यूज हो रहे होंगे या केस स्ट्रक्चर्स यूज हो रहे होंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि लाइन नंबर 11 में हमारे पास एक इफ स्टेटमेंट है, लाइन नंबर 16 में भी है, बट जो फर्स्ट अकरिंग है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Iteration is some kind of loop, so the first loop that you could find is on line number 1, यहाँ पे एक मिल रहा है आपको, एंड देन आपको एक लाइन नंबर 10 में आपको मिल रहा है, और लाइन नंबर आपके पास 23 पे until है, और लाइन नंबर 15 पे आपके पास next है। सो बेसिकली आपके पास जो है हम फर्स्ट अकरिंग स्टेटमेंट को देख रहे हैं जहां से रिपीट का स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है, दैट इज लाइन नंबर 1, राइट। देन हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है कंप्लीट द ट्रेस टेबल फॉर द एल्गोरिथम यूजिंग दिस डेटा माय पासवर्ड। सो कभी कभी ऐसा हो सकता है दैट यू माइट नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द एल्गोरिथम, सो उसके साथ अक्सर जो है ट्रेस टेबल का क्वेश्चन भी आता है। So maybe if you cannot identify that, a better approach, a different approach could be that you could trace table को आप fill कर लें, and then from the trace table you would be able to realize कि आपने करना क्या था, and then accordingly आप जो अपने पास उसका purpose identify करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है।
So start करते हैं यहाँ से. So the first thing that it says, please enter your password, और आपका input आ गया है password. So this data is your input and that will be stored in password. तो यहाँ हम store कर देंगे my password. ठीक है. Then आपके पास जो है वो इसका लेंथ हमने चेक करना है. तो let's count the number of characters. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो it's greater than 10. तो acceptable है. यहाँ पे आएंगे. सिंबल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? is false. देन आपके पास लिखा हुआ है यू केस में आपने पासवर्ड को कन्वर्ट करके पासवर्ड अप में स्टोर करना है. तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे. ये हो जाएगा माय पासवर्ड और आपका एक्सक्लेमेशन मार्क वैसे एज इट इज रहेगा. देन आपने स्टार्ट करना है यहाँ से विच इज काउंटर इज 1. सो मैं काउंटर की वैल्यू 1 कहता हूँ. आई विल नॉट यूज द सेम लाइन, आई विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन बिकॉज अब मैं लूप का सारा काम एक लाइन में करने वाला हूँ. ठीक है. अच्छा सॉरी, आउटपुट एक देना था विच आई फॉरगॉट. तो हमारे पास आई डिडंट सी दैट कॉलम. तो यहाँ पे ये आउटपुट दिया था वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विच इज प्लीज एंटर योर पासवर्ड. ठीक है. यू वुड हैव इनफ स्पेस वैसे. आई नो इस पे थोड़ी सी क्रैम्प स्पेस थी बट यू वुड हैव मोर. सो काउंटर इज 1. देन आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो यहाँ पे आपके पास क्या है? आपके पास कंपेयर करना है. तो सब स्ट्रिंग एज आई सेड फर्स्ट कैरेक्टर को कंपेयर कर रहा है. फर्स्ट कैरेक्टर इज m and that is within the range which is not outside of this range. So इसका मतलब ये यहाँ से नीचे आएगा और काउंटर +1 होगा. ठीक है. तो आप काउंटर +1 करके you will keep on repeating this until you find a value which is out of range. सो काउंटर हमारे पास 1 है एंड काउंटर जो हमारे पास बेसिकली क्या कर रहा है? जो भी पोजीशन था यानी 1 लिखा हुआ था सब स्ट्रिंग में क्या करता है? जो भी आपका पासवर्ड होगा वो काउंटर जो भी पोजीशन है उसमें से एक कैरेक्टर हमने अलग करना. तो दैट इज m फॉर नाउ. ठीक है. अब काउंटर हमारे पास हो गया इंक्रीमेंट टू 2. तो नेक्स्ट वैल्यू वुड बी y. अगेन y जो आपके पास स्टिल इन द रेंज ऑफ a and z. ठीक है. फिर 3 होगा. 3 इज p, वो भी ठीक है. फिर 4 इज a which is also correct. 5 is S, that is also correct. 6 is S, that is also correct. 7 is W, that is also correct. 8 is O, which is also correct. 9 is R, that is also correct. And 10 is D, which is also correct. Now you would be thinking if आप पीछे से कोड को देखे बगैर आप कैसे कर रहे हैं? So basically हमारे पास ये इस वजह से मैंने देखा कि क्योंकि आपके पास जो कंडीशन थी वो मैं चेक कर चुका हूँ. तो इस कंडीशन को चेक करने के बाद मैं उसको ही सिर्फ जो है अपने पास कंपेयर अपने खुद दिमाग से कर रहा हूँ एंड देन आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दैट. ओके. सो फिर हमारे पास अब अगर हम 11th पे आएंगे राइट. सो अब हमारे पास जो डिफरेंट होगा विच इज नॉट एक्सक्लेमेशन मार्क एंड दैट इज आउटसाइड ऑफ दिस. दैट इज नॉट इन बिटवीन ए एंड जी. तो इससे क्या होगा? सिंबल आपके पास नाउ ट्रू हो जाएगा. तो सिंबल की वैल्यू हो गई अब आपके पास ट्रू. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अब लूप आगे कंटिन्यूस नहीं चलेगा बिकॉज नाउ वी हैव रीच द एंड ऑफ द लेंथ. सो यहाँ पे फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा एंड देन इफ सिंबल इज सिंस ट्रू तो आपका आउटपुट क्या आएगा? एक्सेप्ट. एंड देन आपके पास लूप एंड हो जाएगा. तो दैट्स व्हाट वी हैव टू राइट. यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट. सॉरी सेम लाइन में लिख लेते हैं एंड दैट्स वेयर योर प्रोग्राम विल एंड. ओके. देन हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है and that is describe the difference between variables and constants in programming. So variables can change during the execution while constants will not change during the execution. That's what you have to mention for 2 marks. So that's what we'll write. A variable is a value that can be changed during the execution of a program
whereas a constant does not change its value during the execution of a program. Then I can give three basic data types that are used in programming. So हमारे पास बहुत सारे data types हैं, इनमें से हम कोई भी तीन लिख सकते हैं. So integer is one that we could write, yes. We could write real and boolean and char and string. तो कोई भी आप यहाँ पे तीन लिख देंगे. Then it says write pseudocode statements to declare a variable to store the number of, highlight kira main, variable to store number of children in the class and a constant with the value 30 that is the maximum number of students that could be included in a class. So अक्सर जो है, अब मैं एक चीज जो है clear कर दूं, there are a lot of times that जो हम scenario based question पे भी आएंगे, so आपके पास जो constants can also be created. So आप जब, जैसे अगर आपको याद हो from जो मार्च वाला पेपर था and specimen पेपर था, there were a lot of values जिसको आप जिसके against आप compare कर रहे थे. So you could either write that value जिसके साथ आप compare कर रहे हो, but also आप अपने पास वो constant भी बना सकते हो जिससे आप directly compare कर रहे हो. ठीक है? A constant is obviously a better approach, but if you would just write the value, that is also okay, that is not going to be incorrect. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये दोनों चीजें हमारे पास explain करनी है कि हमारे पास ये कैसे create होगा. So जब हमने वेरिएबल बनाना है तो हम लिखते हैं अपने पास declare वेरिएबल का नाम हम कोई भी बना सकते हैं. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो मैं लेगा नंबर स्टूडेंट्स या टोटल स्टूडेंट्स लिख देते हैं. लेट्स कॉल दिस टोटल स्टूडेंट्स एंड इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा. नाउ दूसरा हमारे पास है कांस्टेंट, तो इसके लिए हम लिखते हैं अपने पास कीवर्ड कांस्टेंट और इसके लिए भी हम अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल का नाम बना सकते हैं. लेट्स कॉल दिस मैक्स क्लास साइज और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ 3. तो हमें पता है कि जब हमने असाइन करना होगा कांस्टेंट को तो हम एरो नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली इक्वल्स टू की साइन बना देंगे टू असाइन इट दैट वैल्यू. ओके, देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7. डिस्क्राइब with the use of examples the different types of operators that can be used when programming. So हमारे पास different operators कौन कौन से हैं, तो हमारे पास different operators यहाँ पे 4 मार्क के क्वेश्चन है. हमने different operators बनाने, जैसे assignment operator है. इसके अलावा आपके पास comparison के लिए operators हो सकते हैं, जैसे greater than, less than, equals to, less than, equals to, जिनको हम basically comparisons के लिए use कर सकते हैं. एंड देन हमारे पास बूलियन ऑपरेटर्स भी होते हैं. ठीक है, तो बूलियन ऑपरेटर्स हैं एंड और नॉट. सो हमने क्या करना है, यहाँ पे उनकी एग्जांपल्स देनी है. ठीक है, सो अ टाइप ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हमारे पास होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, राइट. तो यहाँ पे लिख रहा हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. ठीक है, फॉर कैलकुलेशंस. एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो. ठीक है, नंबर 1 is number 2 multiplied by number 3. ठीक है, that's one example. ठीक है, इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स. for selection of different paths
to a program when a condition is true or false. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हम कोई भी if का स्टेटमेंट के साथ में लिखना हो, so if number 1 is greater than number 2, then number 3 is number 1. ठीक है, end if. So that's logical. And last मैं लिख रहा हूँ boolean operator. So boolean operators, ठीक है, कौन कौन से थे? And or not. Example, it could be if number 1 is greater than number 2, ठीक है, and number 1 is greater than number 3. तो कोई भी आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो द एग्जाम्पल डज नॉट मैटर. यू शुड रिमेंबर कि हमारे पास ये 3 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं. अरिथमेटिक, हमारे पास इसके अलावा बूलियन एंड देन लॉजिकल. सो इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्दो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपके पास इज नॉट गोइंग टू बी कि हर एक एग्जाम्पल का एक नंबर है या हर एक डिस्क्रिप्शन का एक नंबर है. सो देयर कुड बी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस फ्रॉम विच इनके मार्क्स कैलकुलेट हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी 1 mark each for the different type of operator that you mentioned, and maybe 1 mark for all the valid examples. Or it could be the other way around. It could be 1 mark for 3 different types of operators and 3 marks for each example. ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि 4 मार्क्स दिए, इसका मतलब 4 डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होंगे. ऑपरेटर्स हमारे पास 3 टाइप के हैं. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स दैट यू डिफाइन. ठीक है, हाँ, बट 2 लिखोगे तो गलत होगा, बिकॉज 2 नहीं है, 3 है. हमें 3 पता है, तो इसलिए हम 3 लिखेंगे. ओके, देन लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग डायग्राम 6 descriptions are shown on the left and 8 library routines are shown on the right. By drawing lines, connect each description to the correct library routine. ठीक है, तो आप जो है वो देखेंगे इसको और मुझे बताएंगे. लेफ्ट साइड पे आप, राइट साइड पे diff, lcase, length, mod, random, round, substring, ucase, ये सारे हमने देखे हुए. मैच करते हैं इनको. सबसे पहले लिखा है रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन. तो रिमाइंडर के लिए हमारे पास यूज होता है mod. रिटर्न्स अ रैंडम नंबर. सो रैंडम नंबर ऑब्वियसली हमारे पास रैंडम से आएगा. रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. So number of character is the length of the string. Returns a string where all letters are lowercase, so that is going to be L case. Returns a string where all the letters are uppercase, so U case. Returns the quotient of a division. तो quotient आपके पास जो है वो that's the upper part जो हमारे पास division के बाद यहाँ पे आता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा that would be a whole number, तो इसलिए div use होगा. Okay, then लिखा है explain what is meant by the term array. So array सबसे पहले तो हमें पता है is a data structure, and वो data structure क्या कर सकता है? It can store a lot of different items, और सबके अंदर data type क्या होगा? Same होगा. पूरे आपके पास सारी वैल्यू सिर्फ एक ही वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर नेम से आप एक्सेस कर सकते हैं. So that's what you're going to write. So you're going to write for 2 marks is an array. Now I know मैंने काफी सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं. You might think कि सर इतनी सारी आपके पास चीजें आप बता रहे हैं तो 2 मार्क के लिए ज्यादा नहीं है, बट नहीं, क्योंकि 2 मार्क के लिए इसका मतलब हो सकता है देयर कुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स जिसको मार्किंग हो रही हो. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एन एरे, पहले बता दूं, इज ए डेटा स्ट्रक्चर containing several elements of the same
data type. These elements can be accessed using the same identifier name. Okay, so that's all the things that I mentioned before. Then part 2 में हमारा लिखा describe using an example how a variable is used as an array index. So हमने example लिखती है और हमने बताना है कि हम किस तरह से variable use कर सकते हैं जिसमें हमारे पास array index के साथ जो यूज हो रहा होगा. तो that basically means कि हमने एक for loop बनाना पड़ेगा जिसमें एक index होगा जिसकी value change हो रही होगी और उसके अंदर हम अपने पास array के index को जो है वो access कर रहे होंगे इसके साथ. तो इसके लिए हम सिंपली अपने पास लिख देते हैं. अब नाउ यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल के अंदर आपको डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होगी. क्यों नहीं जरूरत होगी? बिकॉज यू डोंट नीड टू शो के एरे कैसे डिक्लेयर हो रहा है. तो एरे की डिक्लेरेशन यहाँ पे जरूरत नहीं है. तो जब एरे की डिक्लेरेशन नहीं लिख रहे तो हमें इंडेक्स की डिक्लेरेशन भी नहीं लिखनी है. ठीक है, तो यहाँ पे एरे डिक्लेरेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. आई जस्ट वांट टू शो कि हम इंडेक्स को कैसे यूज कर सकते हैं विद एन एरे. तो आई डोंट नीड टू डिक्लेयर थिंग्स हियर. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सिंपली लिख दूंगा फॉर वेरिएबल के नाम लिख देते हैं इंडेक्स एंड देन 1 2 कोई भी आप नंबर लिख दो. लेट्स से 100. सो लेट्स से 100 इंडेक्सेस का एरे था. तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे माय एरे ब्रैकेट ओपन इंडेक्स और इसके अंदर आप वैल्यू डाल दोगे. लेट्स से आपने डाल दिया 0 एंड देन नेक्स्ट इंडेक्स. ठीक है, it doesn't need to be a specific type of example. It only needs you to mention any random example for this. Now the question is describe the difference between 1D and 2D arrays. So 1D array के अंदर हमारे पास एक single column होता है, multiple rows हो सकते हैं, and 2D array के अंदर it's a table form जिसमें हमारे पास बहुत सारे rows and columns होते हैं. So that's what we'll write. A 1D array is a list with a single column, and a 2D array is a table with rows and columns. Then आपके पास है write pseudocode statements to declare and populate a 2D array with 20 rows of 4 zeros. Use iteration to populate the array. ठीक है, अब 20 rows of 4 आपके पास zeros हैं. इसका मतलब आपके पास हर रो के अंदर 1 2 3 4 columns होंगे and each column will have the value assigned to 0. So what we need to do is make a हमने दो बनाने पड़ेंगे loops. ठीक है, nested loop बनाना पड़ेगा, 1 for rows and 1 for columns. So each row will have 4 zeros. इसका मतलब हर column में आपके पास एक individual 0 है, तो इसका मतलब 4 columns होंगे. तो each column will have 1 0 and a row will have 4 columns with each column as 0. तो 4 zeros रहेंगे. So we will basically create a nested for loop. So हम लिखेंगे for row 1 2 कितने rows हैं? 20 rows हैं, question में लिखा हुआ. Then for columns 1 2 4 columns as it says in the question. Then मैं same array ही use कर लेता हूँ. So my array okay, so I also need to declare this, right? So मैं declaration के लिए एक line छोड़ रहा हूँ. यहाँ पे देखो declaration भी लिखा हुआ है. So we have to declare and populate. So I'm going to declare it later on. मैं populate का भी start कर दिया तो मैं वही लिख देता हूँ. So हम लिखते हैं so column इसका नाम है. So row comma column
और इन सब की वैल्यूज क्या हमने 0 असाइन करनी है। नेक्स्ट कॉलम पहला आएगा बिकॉज इनर लूप पहले कंप्लीट होगा एंड देन आउटर लूप कंप्लीट होगा। नेक्स्ट रो। नाउ हाउ टू डिक्लेयर ए टू डी एरे, तो हम लिखते हैं डिक्लेयर माई एरे कोलन एरे। पहले आपके पास आता है लोअर बाउंड ऑफ रो विच इज 1, ठीक है, कोलन अपर बाउंड ऑफ रो विच इज 20, कॉमा लोअर बाउंड ऑफ कॉलम विच इज 1 एंड देन अपर बाउंड ऑफ कॉलम विच इज 4 ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारे पास डिक्लेरेशन हो गया सबसे पहले कंप्लीट। फिर हमने जो है नेस्टेड लूप बनाया है और नेस्टेड लूप में हमारे पास 20 रोज और 4 कॉलम्स के लिए हमने हर रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन पे वैल्यू 0 असाइन कर दिया। अब इसके अलावा हम क्योंकि अब इस पॉइंट पे हम जो डिक्लेरेशन हमने की है फॉर एरे, it also means that we could also declare the other variables that we have used. So हमारे पास जो है वो declare row comma column और इन दोनों का डेटा टाइप भी हमारे पास है integer. Okay, then लिखा हुआ है give one advantage and one disadvantage of using arrays. So advantage हमारे पास ये है that arrays को populate करना यानी उसके अंदर डेटा को एंटर करना and then उसके अंदर सर्च करना is a repetitive task which can be done very easily by just addressing each index. तो मैं एक for loop बना के जो है वो loop के अंदर, जैसे ऊपर मैंने 0 से साइन किए थे यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने एक ही वेरिएबल नाम था इंडेक्स के लिए लूप रन किया एंड देन सबकी वैल्यू साइन कर दी। अगर मैं कंपेयर करूंगा, अगर 100 वेरिएबल्स होते तो 100 वेरिएबल्स के लिए मुझे 100 स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते, तो यहाँ पे हैंडल करना आसान है। एंड सिमिलरली सर्च करने के लिए भी बड़ा सिंपल है, मैं फॉर लूप रन करके एक स्टेटमेंट लगा के अपने पास कर सकता हूं, डोंट नीड टू कंपेयर मल्टीपल वेरिएबल्स। डिसएडवांटेज ये है दैट एरेज की फिक्स साइज होती है। सो अगर मैंने कहा कि आई वांट टू क्रिएट एन एरे फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन माय क्लास और मैंने 1000 की एरे बना दी एंड लेट्स से मेरे पास स्टूडेंट्स कम हो गए, मेरे पास आए 500 स्टूडेंट्स थे क्लास में, सो मैंने अपने पास 500 स्पेस को वेस्ट कर दिया। और ये भी हो सकता है कि मैंने एरे छोटी बनाई और ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए, देन आई हैव टू क्रिएट अनदर एरे। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। सो इनमें से कोई भी आप एक लिख सकते हो। सो एक तो मैं एडवांटेज लिख देता हूं, एरेज कैन बी पॉपुलेटेड or searched using loop as only the value of index will change. Disadvantage क्या? Arrays have a fixed size, space may be wasted if there are unused elements. Okay, let's move to the next question. And this is question number 10. Read this section of pseudocode that inputs 50 negative numbers and then outputs the largest negative number input. There are 5 errors in this code. Locate these errors and suggest a corrected piece of code for each error. Okay. So इसमें लिखा हुआ है large की एक वैल्यू इसने दे दी है, कोई भी वैल्यू इसने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, बट ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। सो पॉजिटिव लार्जेस्ट वैल्यू इसने दी है। काउंटर इज 50 बिकॉज वी वांटेड टू गेट 50 वैल्यूज, तो इसने काउंटर की वैल्यू 50 कर दी है। ओके, देन लिखा हुआ है while counter is greater than 50. सो काउंटर इज नॉट, यहाँ पे ग्रेटर देन 50 तो नहीं होगा, पहली बार में फेल हो जाएगा, बट आगे चल के देखते हैं क्या हो रहा है। रिपीट इनपुट नेगेटिव नम, यानी एक इनपुट आएगा आपका, दैट शुड बी अ नेगेटिव नंबर until नेगेटिव नंबर इज ग्रेटर देन 0। तो ये भी मेरे ख्याल से मिस्टेक है, बिकॉज नेगेटिव नंबर कभी भी 0 से ज्यादा होगा तो दैट वुड बी इनकरेक्ट, एंड ये उल्टा काम कर रहा है, शुड बी लेस देन 0 होगा तो स्टॉप हो जाना चाहिए। इफ नेगेटिव नंबर इज लेस देन लार्ज,
then large is assigned negative number. ठीक है, तो हमारे पास अगर नेगेटिव नंबर की वैल्यू जो है वो इज लेस देन लार्ज, ठीक है, सो आपके पास अगर फॉर एग्जांपल सिंस लार्ज था 9999 और आपने नेगेटिव नंबर डाला है -1, तो आपके पास जो है -1 लार्ज के अंदर असाइन हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आपका लिखा है काउंटर इज इक्वल्स टू काउंटर +1 और -1, तो ये काउंटर को डिक्रीमेंट कर रहा है। काउंटर को डिक्रीमेंट करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से कंडीशन ये वाली सही है, बट इस इनिशियल जो है वो उसके पास 0 होना चाहिए था। तो हमने 5 जो है वो एरर्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। सो आपके पास जो है एक तो आप सिंपली सबसे पहले आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट आपके पास जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है कि काउंटर की वैल्यू जो आपके पास काउंट करने के लिए यूज है कितने नंबर्स आपने इनपुट किए हैं, तो आप यहाँ पे जो है वो अपने पास, क्योंकि इस कंडीशन को वरना चेंज करना पड़ेगा हमारे पास, और हम क्या करेंगे यहाँ पे काउंटर जो है एक एक करके इंक्रीमेंट होना चाहिए कि हमने कितनी वैल्यूज काउंट करने हैं, बिकॉज वी वांट टू काउंट। सो हमारे पास जो एरर है वो है लाइन नंबर 2 में, और लाइन नंबर 2 में हमारे पास क्या लिखा हुआ था, काउंटर इज 50, विल कन्वर्ट दैट इनटू काउंटर इज 0। देन आप क्या लिखा है, काउंटर इज ग्रेटर देन 50, तो ग्रेटर देन 50 नहीं होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए कि इफ इट्स लेस देन 50 देन इट शुड वर्क। तो यहाँ पे एरर है 03 में, विच इज व्हाइल काउंटर इज ग्रेटर देन 50 डू, तो आप इसकी जगह पे चेंज कर दोगे इसको व्हाइल काउंटर इज लेस देन 50 डू, then repeat input negative number until negative number is greater than 0. तो it should not be this, it should be that number आपका less than 0 का, तो ठीक है। तो 06 until negative num is greater than 0, इसको हम चेंज कर देंगे to until negative num is less than 0, and then एक और एरर यहाँ पे नजर आ रहा है, so this is 08 counter is equals to counter -1। पहले तो ये असाइनमेंट स्टेटमेंट गलत है, तो एरो बनेगा, एंड दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे पास 5th मिस्टेक कहाँ पे है। सो 5th मिस्टेक हमारे पास लार्ज की वैल्यू जो है वो 9999 से, इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये नंबर जो है वो दिस इज अ वेरी, दिस ऑल्दो इज अ लार्ज नंबर, ठीक है। आप क्या यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हमने यहाँ पे चेक किया कि नेगेटिव नंबर इज लेस देन लार्ज। तो अगर आपके पास जो लार्ज नंबर जो है आपके पास 999 है वो भी ठीक है, लेकिन इस सेंस के अंदर आपके पास शुड नॉट बी अ वेरी ह्यूज नंबर which does not make sense in this context. So you need to also identify, देखो इसके अंदर और कोई एरर नहीं है, इसके अंदर सिर्फ जो एक एरर है वो है थोड़ा सा लॉजिकल एरर या कॉन्टेक्चुअल एरर है, which is that कि it should not be 999, it should be a smaller number than that. तो अगर मैं लेट्स से -999 लिख देता हूँ, तो अगर -9999 आता है और आपके पास आता है लेट्स से -1, ठीक है, सो इज लाइक -1 लेस देन -10, सो आपके पास चेंज होगा नहीं, इसका मतलब कि आपको आपको ये नहीं करना, ठीक है। आपके पास द लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर, तो आपका सबसे बड़ा नंबर जो है वो बहुत, दैट वुड बी अ वेरी स्मॉल नंबर, राइट। तो मैं इसकी जगह पे यहाँ पे सिर्फ चेंज कर देता हूँ, एंड आई वुड जस्ट से कि 01 की जगह पे जो आपका लार्ज इज 99, ऑल्दो इट्स राइट, ठीक है, बट हमारे पास contextually it would be better if I would assign it to 0.
Then हमारे पास question number 11. A database of plants for sale, plant sale is to be set up with the following fields. So हमारे पास यहाँ पे है plant name, plant price, plant ID, position, plant height, stock available. State with a reason why a suitable data type, state with a reason, a suitable data type for these fields. So plant price. तो आप plant price के अंदर आप notice कर रहे हो, आपके पास जो है एक आपके पास $10.00 लिखा हुआ है. So some of you might think कि currency भी हम use कर सकते हैं, but a better option would be a real value. ठीक है, तो हम लिखेंगे real as the currency is shown in decimal points. And currency would also be okay. ठीक है. Plant height, तो plant height को आप notice करो, इसकी example के अंदर आपके पास 1.5 लिखा हुआ है, तो again ये आपके पास real होगा, so आप लिख दोगे real as it has a decimal point and can be used for calculations. Okay, we just need to write one. I have written 2 points. And last is position. So position is, for example, shade or sun. तो इसका मतलब ये आपके पास जो है वो position आपके पास से 2 options है, right? अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि ये टेक्स्ट पे हो सकता है, एंड दूसरा बट ऑप्शन है कि ये आपके पास जो है वो बूलियन भी हो सकता है. नाउ हाउ इट वुड बी बूलियन, लेट मी एक्सप्लेन दैट. बिकॉज अगर पोजीशन से हमारे पास 2 हैं, इट सेज सन और शेड, इट सेज इट हैज 2 ऑप्शंस, इट कुड बी जस्ट सन और शेड. अगर यहाँ पे एग्जांपल में लिखा होता सन कॉमा शेड कॉमा समथिंग एल्स, इट मींस इट कुड बी अ टेक्स्ट वैल्यू. सिंस यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, तो आपने आइडेंटिफाई करना था कि ये एक बूलियन वैल्यू हो सकती है. तो हम लिख देंगे यहाँ पे बूलियन एज देयर आर ओनली 2 पोजीशंस. State which field you would choose for the primary key. Explain why it is appropriate. So primary की इनमें से हमारे पास कौन सी वैल्यू हो सकती है? So name हमारे पास जो है वो डिफरेंट प्लांट्स का आपका सेम, यानी आपके पास एक ही प्लांट नहीं होगा, मल्टीपल प्लांट्स होंगे आपके पास फॉर सेल. तो सेम नाम सबका हो सकता है, सबकी प्राइस सेम हो सकती है, सबका पोजीशन सेम हो सकता है, सबकी हाइट सेम हो सकती है, स्टॉक अवेलेबिलिटी प्रॉब्ली इसके अंदर सेम हो सकता है, बट आईडी फॉर ईच प्लांट वुड बी यूनिक. तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, प्लांट आईडी. Was I capital पीछे? Yes, the plant ID. ठीक है, let me explain this again. Plant price जो है ना, उसमें मैंने currency नहीं लिखा है, because again currency is not in our new syllabus. ठीक है, and that's why I recommended कि आप real लिखेंगे. Okay, 12 B हो गया. Okay, फिर हमारे पास है question number 12, and question number 12 is consider this logic expression. अब आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, x is equals to a and b or b and not c. Okay, I did miss out on part B के अंदर explanation. Plant ID का हमने बताना था, explanation देना था. Plant ID as it would uniquely identify the plant. Okay, before I go on to question number 12, I know यहाँ पे SQL का question नहीं है, but I want to give you a random SQL का question so that you understand कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं. ठीक है, so let me just maybe here just write the question.
सो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं, लेट्स जस्ट ऐड आवर ओन पार्ट यहाँ पे, ठीक है, जस्ट सो दैट हमें एक एसक्यूएल की भी एग्जांपल मिल जाए. सो राइट एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले names, prices and number in stock of all plants taller than, let's say, 1.8 meters. ठीक है. अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है. जब एसक्यूएल सॉल्व करना होगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे आपने यहाँ पे डिस्प्ले करना है, इसका मतलब सेलेक्ट यूज होगा. आपने क्या क्या डिस्प्ले करना है, नेम्स, प्राइसेस एंड नंबर इन स्टॉक. ठीक है, तो 3 हमने आइटम्स को डिस्प्ले करना है. देन हम लिखते हैं फ्रॉम एंड विच इज द नेम ऑफ द टेबल. तो नेम ऑफ द टेबल पीछे क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ होगा एंड दैट इज यहाँ पे प्लांट सेल लिखा हुआ है. ठीक है, डेटाबेस ऑफ दिस इज सेटअप और उसके अंदर आपके पास ये चीजें दी हुई हैं. एंड देन आपका लिखा है ऑफ ऑल द प्लांट्स टॉलर देन 1.8 मीटर्स. तो 1.8 मीटर्स ऑल दो लिखा हुआ है, बट आपके पास जो है वो हाइट जो है वो एक रियल नंबर है, तो आप डायरेक्टली रियल नंबर से इसको कंपेयर कर सकते हो. यू डोंट नीड टू राइट मीटर्स इन दिस. ओके, सो इसके अंदर किस तरह से लिखेंगे. तो इस एग्जांपल के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले बताता, यू वुड राइट सेलेक्ट एंड उसके बाद हमारे पास प्लांट्स के नेम्स, प्राइसेस और नंबर इन स्टॉक. तो ये तीनों के नाम ढूंढना है आपको. उनके कॉलम्स के नाम क्या है, प्लांट नेम, ठीक है, प्लांट प्राइस आपके पास लिखा हुआ है एंड स्टॉक अवेलेबल. तो ये तीनों को इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, प्लांट नेम, प्लांट प्राइस एंड स्टॉक अवेलेबल. ठीक है, फिर हम लिखते हैं सेकंड लाइन में फ्रॉम एंड देन द नेम ऑफ द डेटाबेस या नेम ऑफ द टेबल विच इज प्लांट सेल. तो हम लिखेंगे प्लांट सेल. वेयर, अब कंडीशन आपके पास किसके ऊपर अप्लाई होगी, और उसकी हाइट के ऊपर. एंड दिस कॉलम नेम फॉर हाइट इज प्लांट हाइट. सो विल राइट प्लांट height is taller than लिखा है तो is greater than 1.8 and last one लिखते हैं semicolon. So I hope this question also gives you some idea of the SQL questions आपका आते हैं. Normally आपके पास पूरा SQL लिखने शायद आए, ठीक है, there are chances के आपको fill करने आ सकते हैं. ठीक है, हमेशा हम एंड में जो है वो सेमीकॉलन लगाएंगे टू शो यहाँ पर हमारा स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया. ओके, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. कंसिडर दिस लॉजिक एक्सप्रेशन. तो लॉजिक एक्सप्रेशन आपका लिखा हुआ है ए एंड बी, ठीक है, एंड देन दूसरा आपका लिखा हुआ है ए नॉट बी एंड नॉट सी. ओके, तो पहले हम येलो वाला पार्ट में सॉल्व करके दिखा देता हूँ विच इज ए एंड बी. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो वर्किंग स्पेस पहले से बना के दी हुई है, बट इन इज नॉट नेसेसरी एग्जाम के अंदर आपके पास वर्किंग स्पेस बना हुआ आएगा. ठीक है, अब हमारे पास जो है वो ए एंड बी अगर मुझे करना है, विच बेसिकली मीन्स कि आपके पास जहाँ पे ए एंड बी की दोनों की वैल्यू 1 होगी वहां पे हम 1 लिख देंगे एंड बाकी सब जगह पे आप लिख दोगे 0. एंड देन आपके पास लिखा हुआ है नॉट ए एंड नॉट बी. तो इसका मतलब नॉट ए एंड नॉट बी, ऑल्दो मैंने अलग अलग सॉल्व करना चाहिए था इन सबको, बट व्हाट डू यू थिंक, नॉट ए नॉट बी अगर हम देख रहे हैं तो इसका मतलब नॉट बी से अगर 0 होगा तो 1 हो जाएगा एंड नॉट सी से 0 होगा तो 1 हो जाएगा, विच बेसिकली मीन्स कि आपके पास जो है वो बी एंड सी इन दोनों की वैल्यू जब 0 0 होगी तो रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा. तो बी और सी दोनों आपने ढूंढना पड़ेगा. 0 0 कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है. तो इन दो स्पॉट्स पे हम 1 लगा देंगे और बाकी सब जगह पे हम रख देंगे 0. अब बीच में जोर है. जोर का मतलब ये जहाँ पे ऑपोजिट वैल्यूज होंगी वहां पे रिजल्ट 1 होगा. तो यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे है.
सो ऑल द प्लेसेस जहां पे हमारे पास वैल्यूज ऑपोजिट है वहां पे हमने 1 प्लेस कर दिया है. सो क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी. Draw a logic circuit for an unsimplified logic expression. Each gate must have a maximum of 2 inputs. So आपने क्या करना है, पीछे जो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन था इसको हम कॉपी करेंगे और इसको हमने सिंप्लीफाई नहीं करना, हमने इसको एग्जैक्टली ऐसे ही विद ऑल द गेट्स हमने पीछे ड्रॉ करना है, which I think is one of the easier tasks which most of you have also said कि ये सब बहुत आसान होता है. सो हम पहले येलो वाला पार्ट को सॉल्व करते हैं, विच इज ए एंड बी. तो मैं एक एंड गेट ड्रॉ करूंगा. ठीक है, फिर हमारे पास है दूसरी साइड पे, जो ब्लू वाली साइड पे देखो नॉट बी एंड नॉट सी लिखा हुआ, तो उसका मतलब बी पे भी और सी पे भी दोनों पे नॉट करना है. सो एक नॉट गेट यहां बनाते हैं, एक नॉट गेट यहां बनाते हैं, एंड दोनों के बीच में आपने एंड गेट लगाना है. ठीक है, ओके. सो ये हो गया हमारे पास, एंड देन हमारे पास बीच में जोर गेट बनेगा. तो हमने एक जोर गेट बना देना जल्दी से. आई होप आप सबको जो है उसके शेप्स याद होंगे. ओके, सो प्रीटी इजी. ठीक है, आगे चलते हैं, एंड दिस आई थिंक इज आवर लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, राइट. सो हमने क्या करना है, आप इसके अंदर आपने गौर से सुनना है कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक कर रहा हूँ और फिर हम इसको कैसे अपने पास को सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो क्वेश्चन हमारे पास सामने है, एंड दिस इज द वन डायमेंशनल एरे बेबी नेम contains names of the babies in the nursery. Another one-dimensional array, parent phone, contains the phone numbers of the parents of the baby. A final one-dimensional array, baby age, contains the baby's age in months. अब उसके बाद लिखा हुआ है, the position of each baby's data in the 3 arrays is the same. For example, the baby in position 3 in baby name, parent phone, and baby age is the same. ठीक है, and then लिखा हुआ है, write and test a program that meets the following requirements. अब यहाँ पे आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्या, मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ. 3 हमने पता चल गया, एरियाज कौन सी हमें पता समझ में आ गया कि पोजीशन जो है वो इंडेक्स तीनों में सेम यूज हो रहा होगा. देन लिखा हुआ है, राइट एंड टेस्ट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स. तो फर्स्ट आपका लिखा हुआ है, यूज प्रोसीजर्स टू डिस्प्ले दीज लिस्ट. तो प्रोसीजर हमें बनाना आता है, प्रोसीजर का कीवर्ड यूज करते हैं, फिर हम प्रोसीजर का नाम लिखते हैं और फिर हमने क्या करना है, हमने डिस्प्ले करना है पेरेंट फोन नंबर्स and baby names in alphabetical order of the baby name. ठीक है, तो alphabetical order of the baby name आपने जो है एक उसको डिस्प्ले करना है. ठीक है, देन लिखा हुआ है baby names for babies aged under 3 months. so आपने लिख दिया है पेरेंट के फोन नंबर्स एंड बेबी नेम्स, आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द बेबी नेम दिया है. ठीक है, एंड देन आपके पास लिखा हुआ है बेबी नेम्स फॉर बेबीज अंडर 3 months, आपने वो भी डिस्प्ले करना है. ओके, सो इसके अंदर 2 अलग अलग लिस्ट हैं. एक लिस्ट आपके पास लिस्ट नंबर 1 विद फोन नंबर्स एंड बेबी नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एंड देन देयर इज अनदर लिस्ट जिसके अंदर आपको बेबी नेम्स जो है प्रिंट करने हैं
which are under 3 months. तो इन सब के अलग अलग प्रोसीजर्स बनेंगे. तो यूजिंग प्रोसीजर्स आपने ये अलग अलग प्रोसीजर्स बनाने, ये सेम प्रोसीजर के अंदर काम नहीं हो रहा होगा. ठीक है. So one procedure for outputting the baby names in alphabetical order, and the other one is baby names in which are under 3 months. Then लिखा हुआ है use procedures to display all the details of the baby with the name used as parameter. तो इस प्रोसीजर के अंदर आपके पास बेबी नेम मिलेगा आपको एज अ पैरामीटर, और आपने उससे आइडेंटिफाई करना है कि वो बेबी कौन से इंडेक्स के ऊपर, यानी आपको उसको सर्च करना पड़ेगा एंड देन उसकी सारी डिटेल्स अकॉर्डिंगली देनी है. देन लिखा हुआ है यूजेस अ प्रोसीजर टू अपडेट the details of the baby with the name used as a parameter. तो अगेन इसके अंदर भी आपने बेबी के नेम के अगेंस्ट सर्च करना है. आपको जैसे ही मिल जाएगा तो आप अपडेट करोगे उस बेबी की डिटेल्स को. You must use pseudocode or program code with local and global variables and add comments to explain your code. All inputs and output must contain suitable messages. तो now अब आप इस कोड को देखोगे, ये कोड आपके पास जो है उसमें काफी सारी चीजें हो रही हैं. ठीक है. मगर एक चीज जो आप इसमें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो इज दैट कि ये जो पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ द बेबी नेम करने के लिए आपको जो है वो बेबी की जो एरे है बेबी नेम वाली या सारी जो एरेज हैं उन सबको सॉर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. तो इसके लिए आपके पास सॉर्ट करने के लिए आपके पास जो है बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम था जो आप अपने पास यूज करेंगे. ठीक है. देन दूसरा क्या लिखा हुआ है, आपने बेबी नेम को सर्च करना है तो उसके लिए आपके पास लीनियर सर्च का एल्गोरिथम था जो आप यहाँ पे यूज करेंगे. तो फॉर दीज टू थिंग्स व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू नाउ अकॉर्डिंगली यूज द टू एल्गोरिथम्स जो आपने देखे हैं पहले. ठीक है. अच्छा जी. तो सबसे पहले हम अपने पास जो है कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स बना लेते हैं. सबसे पहले जो सबसे आसान मुझे जो लग रहा है, अब यहाँ पे जो है वो आपके पास लिखा हुआ यू मस्ट यूज सूडोकोड फॉर प्रोग्राम को एंड कमेंट्स ऑल इनपुट एंड आउटपुट मस्ट कंटेन सूटेबल मैसेजेस. ठीक है. अब ये जो तीन जो डायमेंशनल एरेज हैं वो हमें अज्यूम करना है कि वो बनी हुई है, बाकी चीजें हमने अपने पास क्रिएट करनी है. ठीक है. तो सबसे पहले जो सबसे आसान मुझे लग रहा है वो है आपके पास, ये मैं इसको हाईलाइट करते जा रहा हूँ, ये विच इज आउटपुटिंग बेबी नेम्स फॉर बेबीज एज अंडर 3 months. तो ये तो बड़ा सिंपल सा काम है. मुझे क्या करना है, एक एक करके सारे बेबीज के एज को कंपेयर करना है. जैसे ही वो लेस देन 3 होगा वहां पे मुझे बेबी का नाम आउटपुट करना है. अब ये आपके पास बनेगा प्रोसीजर. प्रोसीजर बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं अपने पास, अब यहाँ पे हमारे पास बहुत ही लिमिटेड स्पेस है और हमने जो है वो ओके हमने जो है वो यहाँ पे मैं कुछ लाइंस छोड़ रहा हूँ फॉर डिक्लेरेशन. आई विल मूव टू द नेक्स्ट पेज ऑल टुगेदर. ठीक है. टू सेव स्पेस. और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोसीजर. अब प्रोसीजर के अंदर जितने भी वेरिएबल्स यूज होंगे वो लोकल डिक्लेरेशन होगी, यानी उसके अंदर ही वो डिक्लेयर होना चाहिए. अब इसका कोई नाम देना पड़ेगा प्रोसीजर का. बेबी नेम्स फॉर बेबीज अंडर 3 months, तो मैं कह रहा हूँ इसका कोई भी नाम कह सकते हैं. अंडर 3 इसका नाम लिख लेते हैं. आप कोई और नाम भी दे सकते हो. और इसके अंदर आपके पास कोई भी पैरामीटर नहीं होगा. ठीक है. हमने क्या करना है, हमने आउटपुट करना है. अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट में आपके पास कंटेन सूटेबल मैसेजेस. तो मैं पहले लिखा हूँ आउटपुट. ठीक है. आउटपुट होगा नेम्स ऑफ बेबीज अंडर 3 months. ठीक है. एंड इसके लिए मुझे एक एक करके सारे बेबीज के नेम आउटपुट करने हैं, बट एक एक बेबी को चेक करना पड़ेगा. तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर इंडेक्स एंड इट इज गोइंग टू बी 1. अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे बेबी के सॉरी टोटल हमारे पास कितने बेबीज हैं वो यहाँ पे डिफाइन नहीं है. ठीक है.
अब इस सिचुएशन के अंदर अब क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पास कुछ डिटेल मिस कर रहा हो, नॉट ऑलवेज इज गोइंग टू बी द केस, बट इस सिचुएशन के अंदर अगर मिस कर रहा है तो आप अपनी मर्जी से जो है वो अपने पास कुछ अजम्पशन ले लेंगे और अजम्पशन जो अपने कोड में बता देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है वो एक कमेंट के थ्रू बता देता हूँ दैट assuming yes you can ask how many babies there are, yes you can do that, बट मैं यहाँ पे जो है वो इंस्टेड ऑफ कि मैं इनपुट ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे हर बार मुझे इनपुट देना पड़ेगा बिकॉज आई डू नॉट नो एग्जैक्टली कितने हैं, तो मैं अपने पास जो है प्रेफरेबली जो है यहाँ पे एक कमेंट डालने का लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। इन द केस वेयर इट वुड हैव शोड कि आपके पास जो है वो ये आप इनपुट लेके कर सकते हैं और आप वहाँ पे जो इनपुट लेके करते तो ज़्यादा बेहतर था, बट यहाँ पे मैं जो है वो कमेंट लिख रहा हूँ। कमेंट लिखने के लिए सिर्फ आप डबल बैक स्लैश लगाएंगे, कुछ और चीज़ आप कभी भी नहीं लिखेंगे, सच एज आप हैशटैग नहीं लगा सकते, एक जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज होता है, बट सूडो कोड के अंदर हम डबल बैक स्लैश लगाएंगे। तो अज्यूमिंग टोटल या आप लिख देंगे upper bound of array is 50, ठीक है। सो वी आर सेइंग कि हमारे पास 50 इंडेक्सेस हैं, तो मैं लिख रहा हूँ 1 2 50, एंड देन व्हाट आई हैव टू डू इज इफ हमारे पास बेबी की एज किस एरे के अंदर थी, तो बेबी एज इज इन एरे बेबी एज, ठीक है। तो मैं लिखूंगा बेबी एज ब्रैकेट ओपन और इसमें हम लिख देंगे इंडेक्स इफ इज लेस देन 3, देन मैं अब सेम लाइन में देन लिख रहा हूँ टू सेव स्पेस बिकॉज मुझे पता है इसमें कहीं एल्स यूज नहीं होगा, आउटपुट, और मुझे क्या करना था, आउटपुट करना था बेबीज नेम, राइट। सो बेबीज नेम इज इन दिस एरे बेबी नेम, सो आउटपुट baby name and it would be in the same index, and if and next index, और यहां पर हम लिख देंगे end procedure, ओके। ये हो गया हमारे पास एक काम कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है वो यहाँ पे बेबीज को आउटपुट भी करना है, राइट। सो सॉरी, बेबीज को आउटपुट करना है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द बेबी नेम, ओके। तो हमारे पास जो है वो एक एक करके हमने सिंपल तरीका ये कि यहाँ पे मैं बबल सॉर्ट का कोड लिख सकता हूँ, ठीक है। और बबल सॉर्ट का कोड लिख के अकॉर्डिंगली इस पूरी एरे को मैं सॉर्ट कर दूं, एंड इसको सॉर्ट करने के बाद हम अपने पास जो है वो सिर्फ सारी नेम्स जो है वो या सारी वैल्यूज को एक साथ आउटपुट कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने करना पड़ेगा parent phone numbers and baby names in alphabetical order, ओके। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोसीजर। तो एक हम बनाते हैं प्रोसीजर जिसके अंदर हमने करना है इसका नाम कोई अच्छा सा सोचते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर या सॉर्टेड बेबीज या सॉर्ट बेबीज कुछ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। सॉर्ट बेबीज, ठीक है, लेट्स डू दिस। अब जब आप इसको सॉर्ट कर रहे होगे तो आपको सॉर्ट सिर्फ एक एरे को सॉर्ट नहीं करना, आपको तीनों एरे को सॉर्ट करना है, बट उनकी सॉर्टिंग किस बेसिस पे होगी, दे विल बी sorted on the basis of the names of the baby, right? So आप अपने पास जो है वो names of babies को कंपेयर करेंगे और तीनों एरे को जो है स्वैप करेंगे, और हमारे पास जो ब्रैकेट्स हमने एम्प्टी छोड़े हैं इसलिए छोड़े हैं बिकॉज उसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है। सो हमने स्टार्ट करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे इफ यू
रिमेंबर हमारे पास जो है वो बबल सॉर्ट का जो कोड आपके पास था, हम उसकी बेसिस पे इसको हम अपने पास सॉर्ट करते जाएंगे. ओके, सो दिस इज द कोड दैट वी सॉ फॉर बबल सॉर्ट, राइट? कि बबल सॉर्ट हमारे पास जो है, इस कोड को हमने देखा था कि ये सारे हमारे पास डिटेल क्या थी बबल सॉर्ट की, तो हम इसी को देख के अपने पास जो है दूसरा बबल सॉर्ट जो भी हम लिखने वाले हैं वो इसी की बेसिस पे लिखेंगे. ठीक है. सो फॉर योर रेफरेंस व्हाट आई वुड डू इज आई वुड जस्ट कॉपी दिस. ठीक है. एंड आई वुड शो यू कि हमारे पास चेंजेस किस तरह से होंगी इन व्हाट वी वांट टू डू राइट नाउ. ठीक है. So I'm going to copy this, and then on our test paper I'm going to paste it यहाँ पे, and I'm going to show you कि हमारे पास ये किस तरह से सिमिलर होगा. ठीक है. सो यहाँ पे फर्स्ट इज वन. अब मुझे फर्स्ट की वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज मुझे पता वन है, सो आई डोंट नीड टू मेंशन दैट. लास्ट इज क्लास साइज लिखा था, यहाँ पे मुझे स्पेसिफाइड है, मुझे पता है क्लास साइज यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं. लास्ट वैल्यू क्या है? 50 है. मैंने ऊपर कमेंट में मेंशन कर दिया. आई डोंट नीड टू डू दिस अगेन टू सेव स्पेस. यू कैन डू दैट, यू कैन ऐड ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स व्हिच, बट जरूरत नहीं है यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर. मैं यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा रिपीट से. सबसे पहले आपके पास एक वेरिएबल था स्वैप, जिसकी वैल्यू आपने कर दी है फॉल्स. ठीक है. अच्छा, अब एक जो चीज जो मैं यहाँ पे बता रहा था पहले भी, इज दैट एनी वेरिएबल्स दैट यू यूज, आपको उसको जो है वो इसी के अंदर प्रोसीजर के अंदर डिक्लेयर करना होगा. why would you be declaring all of that inside of the procedures? Because ये सारे के सारे लोकल स्कोप में है. इफ यू रिमेंबर लोकल स्कोप हमने पढ़ा था. तो लोकल स्कोप का मतलब क्या है कि आपके पास वो सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं जो आप इस प्रोसीजर के अंदर यूज कर रहे हो, वो सिर्फ इस प्रोसीजर के अंदर विजिबल है. इट्स नॉट विजिबल आउटसाइड द प्रोसीजर. ठीक है. तो लोकल स्कोप हमारे पास ये, तो मैं इसी के अंदर डिक्लेयर करूंगा. हमारे पास ये हो गया फॉल्स, मैं उसके लिए जगह छोड़ दी ऊपर. एंड देन हमारे पास जो है हम यूज कर लेते हैं, हमारे पास फिर लिखा है फॉर, तो मैं फॉर लूप यूज करेंगे. फॉर इंडेक्स इज 1 to 50. ठीक है. बट यहाँ पे लिखा है फॉर लास्ट -1, तो हम यहाँ पे कर देंगे इंस्टेड ऑफ 50 वी वुड डू 49. देन लिखा हुआ है इफ. अब आपके पास आप कंपेयर किसको कर रहे हो? यहाँ पे नेम एरे का नाम था, बट हमारे पास हमने कंपेयर किसको करना है? बेबी नेम, बिकॉज वी वांट टू सॉर्ट द एरे बेबी नेम. तो हम लिखेंगे इफ बेबी नेम इंडेक्स is greater than baby name index plus 1. Then अब यहां से मैं उठा के इसको यहां ले आता हूं. ठीक है. आई होप यू कैन सी दिस. एंड देन आपके पास नेक्स्ट लाइन में क्या है? यहाँ पे देखो आपके पास, फॉर इफ यू रिमेंबर आई सेड कि ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं दीज आर फॉर स्वैपिंग. बट ये स्वैप किसको कर रहा है? ये सिर्फ बेबी नेम की एरे को स्वैप कर रहा है. बट हमारे पास ये तीनों एरेज के जो इंडेक्सेस हैं दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो इट मींस दैट नॉट ओनली बेबी नेम को स्वैप करेंगे, पेरेंट फोन को स्वैप करेंगे, बेबी एज को भी स्वैप करेंगे. सो मैं 3 अपने पास जो है वो स्वैपिंग के स्टेटमेंट्स लिखूंगा. सो temp1 इज बेबी नेम index, and then baby name index is baby name index plus 1, and then इसी तरह से baby name index plus 1 is temp1. ठीक है.
सो बेबी नेम को हम सॉर्ट कर रहे हैं बिकॉज वो बेबी नेम से हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेना है. बेबी सॉरी पेरेंट का फोन नंबर because that is also related to the same index and baby age is also related to the same index. Although baby age को इस स्टेटमेंट में जहां पे हमने ये आउटपुट करने थे नेम और पेरेंट फोन नंबर वहां पे जरूरत नहीं है, बट सिंस दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इसलिए हम सबको एक साथ सॉर्ट करेंगे. अदरवाइज आपके पास बाकी जो प्रोसीजर्स के काम है उनके अंदर इनकरेक्ट हो जाएगा सब कुछ. इसके अलावा हमारे पास जो है सेकंड कौन सा था, उसको भी हम देख लेते हैं. तो यहाँ पे अब एक स्टेटमेंट मैंने स्वैप का लिख दिया है फॉर दिस. अब एक और स्वैपेंगे, टेम्प2 इसका नाम लिख लेता हूँ. सो दैट वुड बी फॉर एरे का नाम है पेरेंट फोन, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पेरेंट फोन और इसका डेटा इसके अंदर हम लिख देंगे इंडेक्स. ठीक है, एंड देन पेरेंट फोन इंडेक्स इज एक मिनट, पेरेंट फोन इंडेक्स +1 एंड देन हमारे पास था पेरेंट फोन इंडेक्स +1 is temp2 एंड देन मुझे जो है वो थर्ड वैल्यू को भी जो है वो अपने पास यहाँ पे सॉर्ट करना है. ठीक है, तो मैं इसको भी यहाँ पे अपने पास साथ साथ में ही सॉर्ट कर दूंगा. तो हम लिखेंगे temp3 एंड देन हमारे पास था इसका नाम बेबी एज, राइट. सो हम लिखेंगे बेबी एज एंड ये हो गया आपके पास इंडेक्स एंड देन बेबी एज इंडेक्स प्लस सॉरी इंडेक्स हम इंसर्ट कर देंगे बेबी एज इंडेक्स +1 एंड देन आपके पास क्या था, बेबी एज इंडेक्स +1 इज temp3. तो काफी सारी चीजें हमारे पास हो गई. यहाँ पे तीनों हमने जो है स्वैप कर दिया, बट उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अब मैं इस चीज को कॉपी करके जो है हम नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं so that you can see what's happening. ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना था, नेक्स्ट इज swap is true एंड देन हम लिख देंगे एंड इफ एंड देन इसके बाद हमने लिखना है नेक्स्ट इंडेक्स एंड देन इसके लिखा हुआ है लास्ट -1. तो हमारे पास अब लास्ट -1 हो रहा है, तो हमें लास्ट -1 लिखने के लिए वी हैड टू आल्सो क्रिएट दैट वेरिएबल, राइट. सो मैं यहाँ पे काम कर देता हूँ, अपने पास यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ. तो लेता हूँ लास्ट -1 एंड देन लास्ट इज 50 और मैं यहाँ पे लिख दूंगा लास्ट इज लास्ट -1 एंड देन आपने लिखना है until सॉरी थोड़ा सा और अंदर करना पड़ेगा until not swap and sorry or last is equals to 1. So ये सारी डिटेल्स मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. सो आई होप इसके अंदर कोड में कोई भी अब रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी, बट ये हमने जो है वो बेसिकली करना था बट स्वैपिंग. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास स्वैप तो हो गया. अब हमने करना क्या है, हमने जो है वो इनको आउटपुट करना था, राइट. तो इसमें अब क्या रह गया is parent numbers and
baby names in alphabetical order. तो ये हमारे पास sorted है, तो मैंने इस array के अंदर तो sort कर लिया sort babies के अंदर, और इसी के अंदर मैं आउटपुट भी कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं एक और प्रोसीजर बना सकता हूँ जिसके अंदर मैं उनको आउटपुट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, I'm gonna output it in the same procedure because the question says कि एक प्रोसीजर में इसमें आपने उसको काम करना है, तो मैं इसी के अंदर सॉर्ट करके इसी के अंदर आउटपुट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ for index is 1 to 50 एंड देन हमने क्या करना है, अपने पास हम आउटपुट कर देंगे। इससे पहले एक स्टेटमेंट भी दे देता हूँ सो दैट दे नो कि हम क्या आउटपुट कर रहे हैं। आउटपुट baby names and phone numbers in alphabetic order and then 50 and then आपको क्या करना है, बस आउटपुट करना है। ठीक है, तो आप आउटपुट लिखोगे और आपके पास एरे का नेम था आपके पास बेबी नेम इंडेक्स और कॉमा दूसरी आपके पास था फोन पेरेंट फोन और ये आपके पास इंडेक्स हो गया एंड देन नेक्स्ट इंडेक्स। अब मैं बिफोर आई कंटिन्यू दिस आई वांट टू जस्ट मेंशन दिस के ऑल्दो ये क्वेश्चन में 12 मार्क का क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, बट इस क्वेश्चन के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो गो थ्रू हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ऑल्दो 12 मार्क्स आई नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर गोइंग ओवर। तो आपके पास जो है, जो आपके पास फंक्शंस और प्रोसीजर के कॉन्सेप्ट्स एंड पैरामीटर्स के कॉन्सेप्ट्स, आपके पास जो है वो ग्लोबल लोकल स्कोप के कॉन्सेप्ट्स, एरे के कॉन्सेप्ट्स, आपके पास जो है लीनियर सर्च और बबल सॉर्ट के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो रहे हैं। तो जस्ट टेक इट एज के प्रैक्टिस के लिए हमारे पास है, बट ये ऑब्वियसली क्वेश्चन इतनी सारी चीज़ें नहीं आ रही होंगी, सो थोड़ा सा शायद कम होगा या प्रॉब्ली कुछ चीज़ें आधी बनी हुई होंगी और आधी नहीं होंगी, ऐसा भी हो सकता है। ओके अब हम आगे चलते हैं एंड देन दूसरा क्या था, प्रोसीजर टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स फॉर अ बेबी विद द नेम यूज एज अ पैरामीटर uses a procedure to update the details of the baby with the name used as a parameter. Okay, तो हमारे पास अब जो है वो अपडेट करना है जो बेबी का नाम दिया हुआ है और हमने जो है वो फाइंड करके डिटेल्स भी आउटपुट करनी है। सो अगर मुझे कोई चीज़ सर्च करनी है तो हमारे पास लीनियर सर्च का जो तरीका था दैट इज ऑल्सो देयर। तो ये लीनियर सर्च का कोड लिखा है, बट मैं आपको एक और कोड जरा दिखा रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू सर्च एंड जस्ट एग्जिट, आई जस्ट वांट टू सर्च एंड आउटपुट समथिंग। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक प्रोसीजर बनाते हैं एंड प्रोसीजर आपके पास है फॉर डिस्प्लेइंग डिटेल्स ऑफ द बेबी, राइट। तो बेबी डिटेल्स हम इसका नाम लिख लेते हैं, तो बेबी डिटेल्स और इसके अंदर आपके पास पैरामीटर में आपको क्या मिलेगा, नेम ऑफ द बेबी, राइट। सो नेम मैं लिख रहा हूँ नेम और उसका डेटा टाइप क्या होगा आपके पास, स्ट्रिंग आपने लिखना है। Now we need to output the details of the baby, right? So उसके लिए मैं output लिख रहा हूँ यहाँ पे, output baby details and then मुझे क्या करना है, उसको search करना है। अब search करने के लिए जो है मैं instead of writing the linear search का algorithm, मैं simply यहाँ पे अपने पास एक for loop लगा सकता हूँ बिकॉज बेबी की जो डिटेल्स है, जो बेबी का नाम है आपके पास हो सकता है सेम नाम के 4 बेबीज हों, सबकी डिटेल आपको आउटपुट करनी होगी बिकॉज प्रॉब्ली शायद नेम यूनिक नहीं हो। अगर हो सकता है सेम नेम यूनिक भी है तो आपका एक ही बार आउटपुट होगा बिकॉज यू हैव द नेम, you will output all the details for that, so you don't need to end this search, you just have to output anytime you find this baby name. So मैं इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि मैं अपने पास एक for loop बनाऊं, for index 1 to 50 and then if baby name index
इज इक्वल्स टू नेम, ठीक है। देन आपने क्या करना है, आउटपुट करना है डिटेल्स, ऑल द डिटेल्स ऑफ द बेबी। सो वो आपके पास बेबी नेम and it is also baby age and it is also parent। ओके, थोड़ा सा जो है ना मैंने लिखने में गड़बड़ थोड़ी सी करती है, थोड़ा साफ लिखते हैं वापस से। सो पेरेंट फोन इंडेक्स, ठीक है, एंड इफ and then next index and then end procedure। एंड इसी तरीके से हमने दूसरा काम करना है which is ये भी हो गया, ये भी हो गया, is update all the details for that baby। तो आपके पास जो है आप इनपुट लेके उसको स्टोर कर देंगे। तो आपने करना क्या है, आपने सर्च करना है और वहां पे आपने इनपुट से स्टोर करना है। तो हम इसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर and we'll call this update baby and इसके अंदर हमारे पास पैरामीटर होगा नेम एंड इसका डेटा टाइप क्या है, string। then I will output, let's say let's not output anything, हम यहाँ पे नीचे आउटपुट दे देंगे, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने पास, पहले तो सर्च कर लेते हैं बेबी को, तो फॉर इंडेक्स 1 to 50 एंड सिमिलर जैसे ऊपर क्या था, इफ बेबी नेम इंडेक्स इज इक्वल्स टू नेम, देन हमने क्या करना है, देन हमने जो अपने पास, मैं इधर लिख देता हूँ, देन जस्ट टू सेव स्पेस इज अपडेट द वैल्यूज। तो इसके लिए मुझे आउटपुट लेके इनपुट लेके जो है वो उसके ऊपर अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आउटपुट एंटर अपडेटेड एज। सो इनपुट baby age at the same index, right? Then output enter updated parent phone। तो ये आपके पास जाएगा इनपुट parent phone and sorry bracket index and then and if next index and then end procedure, ठीक है। Although बहुत सारी चीजें की हैं but we were able to manage that all in this limited space। नाउ आपके पास जो है हमने ये इसको भी कर लिया है, हमने राइट भी कर लिया, हमने टेस्ट भी करना है प्रोग्राम। तो टेस्ट करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, व्हाट यू कुड डू इज जस्ट कॉल द प्रोसीजर्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ स्पेसेस छोड़ा, आई नो ये स्पेसेस नहीं छोड़ने चाहिए थे मुझे क्योंकि जगह थोड़ी सी वरना क्रैम्प जाती, बट आई डिड लीव अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर दिस। अब आपने करना ये है कि इसमें जो है डिक्लेरेशंस कर लेते हैं, राइट। सो डिक्लेरेशंस के लिए मैं अलग कलर्स आपको दिखा रहा हूँ। उसके अंदर डिक्लेयर करने के लिए मुझे नजर आ रहा है कि एक इंडेक्स यूज हो रहा है, तो इसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डिक्लेयर इंडेक्स और इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे मुझे क्या क्या नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है लास्ट, मुझे नजर आ रहा है स्वैप इंडेक्स temp1 temp2 temp3, ठीक है। या तो ये इतने सारे यहाँ पे हो रहे हैं तो हम एक एक करके डिक्लेयर कर देते हैं। डिक्लेयर, ठीक है, लास्ट इंडेक्स एंड बेबी एज, राइट। सो temp3 में हमारे पास बेबी एज स्टोर हो रहा था, तो temp3 ये सब हमारे पास इंटीजर हो जाएगा।
whereas declare temp1 is string, temp2 is also string, and declare हमारे पास है swap. ठीक है, ये boolean हो जाएगा. ओके, एंड देन हमारे पास जो है इधर और इधर दोनों जगह पे सिर्फ और सिर्फ आपका एडिशनली जो यूज हो रहा है वो इंडेक्स यूज हो रहा है. सो मैं यहाँ पे जो है वो डिक्लेयर कर रहा हूँ एंड डिक्लेयर इंटीजर कर दिया हमने एंड देन डिक्लेयर इंडेक्स एज इंटीजर. ओके, अब मुझे जो है वो इसको सब कुछ करने के बाद भी एक एडिशनल काम जो करना है ना, वो है टू कॉल ऑल ऑफ दिस. ठीक है, सो हमने इन सबको कॉल करना है. तो हमने क्या क्या करना होगा, कॉल करना पड़ेगा सबसे पहले इस प्रोसीजर को सॉर्ट बेबीज वाले प्रोसीजर को कॉल कर लेते हैं. सो हमें कॉल करने के लिए हम किस तरह से लिखते हैं, हम लिखते हैं कॉल, क्या नाम था इसका, हमने रखा था सॉर्ट बेबीज. सो विल कॉल सॉर्ट बेबीज. ठीक है, देन कॉल दूसरा था हमारे पास अंडर 3. तो हम इन सारे मेथड्स को कॉल भी करेंगे अंडर 3. एंड देन आपने जो है वो बेबी डिटेल्स एंड अपडेट बेबी, ये दो प्रोसीजर्स आपने कॉल करने थे, बट उसके अंदर आपने नेम भी पास करना है. तो इसके लिए मैं एक आउटपुट दूंगा, आउटपुट एंटर बेबी नेम. अब ये सारी चीजें जो मैंने स्टार्टिंग में स्पेस छोड़ी थी वहां पे मैं ये जो है वो अगर वो बचा लेता तो ये जगह ये वहां पे हो जाता. ठीक है, सो एंटर बेबी नेम फॉर डिटेल्स. तो एक वेरिएबल के अंदर हम डाल देते हैं, लेट्स कॉल दिस बेबी, so let's just call it name. ठीक है, बेबी नेम तो एरे का भी नाम है. और इसके लिए हम कॉल करेंगे प्रोसीजर को. प्रोसीजर का नाम क्या था, बेबी डिटेल्स. सो विल कॉल इट बेबी डिटेल्स और इसके अंदर आ जाएगा नेम एंड देन वापस से आउटपुट एंटर बेबी नेम फॉर अपडेटिंग एंड इनपुट. अगेन सेम वेरिएबल का नाम यूज कर रहा हूं मैं, नेम, एंड देन कॉल. हमने इस प्रोसीजर का नाम क्या रखा था, अपडेट बेबी. एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे नेम. अब यहाँ भी हमने डिक्लेयर करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिक्लेयर. एक ही वेरिएबल है जो मैंने यूज किया यहाँ पे, बेबी जस्ट नेम नाम था इसका, नेम, और इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग. ओके, तो यहाँ पे हमारा ये 15 मार्क वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है. ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया. तो आई होप कि अब ये पूरा पेपर आपसे समझ में आ गया होगा, एंड स्पेशली दिस scenario based question is now something that you understood. I hope this will help you out and best of luck with your exams. ठीक है, alright guys, तो फिर यहाँ पे end करते हैं. खुदा हाफिज़.